Hello students, today we will read SST Part 1 History, Chapter 5 The Life of the People During the Sultanate Era. बच्चों आज हम इतिहास में चैप्टर 5 सल्तनत कालीन जनजीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं. Listen carefully and look at this video. First of all, in the previous chapter we learned how the Turk Sultanate established their rule in Delhi. In this lesson, we shall learn how the life of and culture of the people of our country changed under this rulers. बच्चों, पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा कि कैसे दिल्ली में तुर्क सुल्तानों का शासन स्थापित हुआ. इस नए शासन का हमारे देश के लोगों के जीवन और संस्कृति पर क्या असर पड़ा होगा. आइए इस पाठ में पढ़ें. सबसे पहले हम देखते हैं. लेट्स सी अराइवल ऑफ फॉरेनर मीन्स विदेशियों का आगमन. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत many people from Iran, Iraq, Turkey, Samarkand, Bukhara and other countries and cities came to settle in India. They included scholars, sons, soldiers, merchants, traders and workers who spoke different language. They not only settled here but looked upon India as their own country. Prominent among them was Amir Khusro, who called himself an Indian Turk. He wrote poems not only in Persian but in the local language called Hindvi. Many of these poems sang the Persians of India. There was another reason for the influx of large numbers of foreigners. The Mongol warlord Genghis Khan had conquered the whole of Central Asia and destroyed the culture of the people of this region. Terrified, the people sought refuge with the Delhi Sultanate. They too enriched Indian culture with their art, religions and learning. बच्चों, जब सल्तनत के बनने का क्या एक परिणाम हुआ कि वहाँ पर क्या हुआ, ईरान, इराक, तुर्किस्तान और समरकंद और बुखारा जैसे इलाकों से बहुत सारे लोग भारत आकर बसे. वे न केवल भारत में आकर बसे अपितु क्या हुआ, उन्होंने इसे अपना देश भी माना. इनमें से प्रमुख था अमीर खुसरो, जिसने अपने आप को क्या माना, हिंदुस्तानी तुर्क माना. उसने फारसी के साथ साथ यहाँ की आम बोलचाल की भाषा हिंदवी में भी कविताएं लिखी. उसने हिंदुस्तान की प्रशंसा में कई कविताएं लिखी. इसी तरह कई भाषाएं बोलने वाले जैसे कारीगर, विद्वान, संत आदि भारत आकर भी बसे. विदेशों से बड़ी संख्या में लोगों के इस तरह आने के पीछे एक और कारण था. उन दिनों चंगेज खान नामक मंगोल आक्रमणकारी पूरे मध्य एशिया के राज्यों को हराकर उनकी सभ्यता को नष्ट कर रहा था. उसके भय से इन लोगों ने दिल्ली सल्तनत में शरण ली थी. इन सब लोगों ने अपनी हुनर, अपनी विद्वता और धार्मिकता से भारतीय संस्कृति को और भी समृद्ध बना दिया. देन अब देखते हैं हम द रूलर एंड देयर रीजन मीन्स शासक और उनका शासन. द सल्तनत वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल पर्सन ड्यूरिंग द सल्तनत era. The early sultan were so the high officials and generals did not like to serve as their subordinates, but during the reign of Balban and Alauddin Khilji, the Sultanate established full control over these senior officials and generals, who were known as Amir, and the Sultan became the supreme ruler. The Sultanate also replaced the many smaller kingdoms that had existed earlier, with their rulers becoming jamidars under the authority of the Sultan. These kings used to earlier appoint their relatives as their officials and generals, and this post used to be hereditary.
However, under the Sultanate, appointments were made purely of the basis of merit, and people from all walk of life could apply for them. These posts were no longer hereditary, and the officers were also regularly transferred from one province to another. मीन्स उन समय क्या होता था, उस समय उन दिनों में सल्तनत काल में सुल्तान ही सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली महत्वपूर्ण होता था। शुरू के जो सुल्तान गुलामी से उठकर सुल्तान बने थे, जैसा कि हमने आपको बताया था, गुलाम वंश जो था पहला, जो सल्तनत काल में पहला वंश था गुलाम वंश। इस कारण उनके बड़े अधिकारी व सेनापति उनसे दबकर नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि वो पहले गुलाम थे, फिर शासक हुए। लेकिन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी आदि के समय तक सुल्तान राज्य का सर्वेसर्वा बन गया था। बड़े अधिकारी व सेनापति, जिन्हें अमीर कहा जाता था, उन पर सुल्तान का पूरा नियंत्रण मीन्स कंट्रोल हो गया था। इस तरह सुल्तान निरंकुश शासक बन गए थे। इससे पहले भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे, अब उनकी जगह एक बड़ी सल्तनत बन गई। लेकिन पुराने छोटे राजा समाप्त नहीं हुए थे, वे सुल्तान के अधीन जमींदार बनकर रहने लगे। पहले राजा के अधिकारी उनके रिश्तेदार होते थे और उनका पद प्रायः वंशानुगत होता था। लेकिन अब सुल्तान का अधिकारी कोई भी हो सकता था, कोई भी पद पिता से पुत्र को नहीं मिलता था। राज्य के अधिकारियों का लगातार तबादला भी मीन्स ट्रांसफर भी होता रहता था। सो स्टूडेंट्स, क्या बता सकते हैं सल्तनत के बनने से शासन व्यवस्था में कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण बदलाव आए होंगे? लेट्स सी चेंजेस इन विलेज लाइफ। अब देखते हैं हम गांव के लोगों के जीवन में क्या बदलाव हुए। फार्मिंग continued to be the main occupations of the people, but the farmers were affected by the change in the revenue system of the सल्तनत। उन दिनों क्या था, सल्तनत काल में जो पहले की तरह लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती ही था, लेकिन सल्तनत की लगान व्यवस्था का असर लोगों पर भी पड़ा। अर्लियर मीन्स आपको याद होगा villagers were donated to feudal vassal in the lieu of salary. The feudals were entitled to collect several minor and major taxes from the people, but the sultans put a stop to this practice. Taxes were now collected by their officers, and instead of several different levies, the farmers had to pay a single large tax, which amounted to half their farm produce. This tax was collected by the village headmen and handed over the sultan's officers. Since the sultan often compelled the villagers to pay the tax in cash, the farmers were forced to sell their produce in the cities. They thus began to interact more frequently with the cities. उस समय क्या हुआ था, जैसे कि उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, खेती था, लेकिन सल्तनत की जो लगान व्यवस्था का असर क्या हुआ, लोगों पर पड़ा। पहले गांव किसी न किसी सामान के राजस्व वसूली के लिए दिया जाता था और वह मनमाने तरीके से क्या करता था, तरह तरह के छोटे बड़े टैक्स वसूल करता था। लेकिन अब सुल्तानों ने इस व्यवस्था को क्या किया, समाप्त कर दिया। अब सुल्तान के जो अधिकारी लगान इकट्ठा करते थे, कई छोटे छोटे करों की जगह एक बड़ा लगान तय कर दिया। यह खेत की उपज का लगभग आधा था। यह लगान गांव के मुखिया इकट्ठा करके सुल्तान के अधिकारियों को दे देते थे। अक्सर सुल्तान किसानों को लगान नगद देने पर मजबूर करते थे। इस कारण किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर बेचना पड़ता था। इससे किसानों का शहरों में आना जाना बढ़ गया। अब देखते हैं हम
गांव के लोगों के जीवन के बारे में हमने बदलाव देखा। अब देखते हैं चेंजेस इन सिटी लाइफ, मीन शहरों में क्या बदलाव हुआ इससे। The Sultan and his senior officers lived in cities and they spent the revenue collected from villages in these cities. As a result, the cities developed rapidly. Craftsmen like masons, weaver, tailor, carpenters, blacksmiths, etc. begins settling there and trade flourished. The Turk introduced many new productions, techniques, and trades which had a profound impact on the commerce and cultures of the people. Craftsmen from Central Asia who came to India with the Turk introduced new constructions techniques including lime and mortar for joining and painting, and the use of tower, arches, and domes in buildings. Such techniques can be found in buildings construction even today. The book you are reading is made of paper. The art of paper making and binding was brought to India by the Turks. They learned in from the Chinese. The Turks also introduced the practice of sewing horses and using steers for riding. The Turkish influence can also be seen in the use of the charkha to spin yarn in place of the earlier practice of using bobbins in clothing the kurta, pajama and salwar kameez became popular, while food the samosa, halwa, etc. became commonplace. At that time, samosa was stuffed by keema and fried. Reference medieval India. The Turks too learned many things from India. In fact, Al-Biruni came to India for this very purpose. Do you remember what he had learned? Arab scholars learned mathematician, astronomy, Ayurveda and yoga and spread this knowledge to their own countries. They learned the use of zero in mathematician and introduced it to Europe. They also translate the stories of the Panchatantra and Ayurvedic manuscripts into Arabic and Persian and were benefits. मीन्स क्या हुआ, शहरों में किस प्रकार के बदलाव हुए। सुल्तान व उसके अधिकारी शहरों में ही बसे थे और किसानों से इकट्ठा किए गए लगानों को शहरों के विकास में खर्च कर देते थे। इससे शहरों का जो तेजी से क्या हुआ, विकास हुआ। वहाँ अब तरह तरह के कारीगर, मिस्त्री, बुनकर, दर्जी, बढ़ई, लोहार आदि बसने लगे। शहरों के विकास के साथ व्यापार भी बढ़ गया। तुर्क अपने साथ कई नए तकनीक और उद्योग भी लाए। इसका लोगों के व्यवसाय और संस्कृति पर गहरा असर पड़ा। मध्य एशिया के कारीगर जो तुर्कों के साथ भारत आए, इमारत बनाने के कई नए तरीकों को भी साथ लाए। इनमें से महत्वपूर्ण थे जुड़ाई में चूना गारे का प्रयोग, जैसे मीनार, गुम्बद और मेहराब। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मीनार, ये गुम्बद है ना, और मेहराब का उपयोग होने लगा। आप आज भी इनका उपयोग अपने आसपास की इमारतों में देख सकते हैं। जैसा आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं ना, वह कागजों से ही बनी है। कागज बनाने की कला और पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाने की कला कहाँ भारत में तुर्क ही लाए थे। सबसे पहले किसने बताया था हमें ये कला? तुर्क के लोग ही हमें बताए थे। उन्होंने वह कला चीन के लोगों से सीखी थी। और घोड़ों के खुरों पर नाल लगाना और रकाब लगाना भी तुर्कों ने ही भारत में शुरू करवाया था। इसी तरह सूत काटने के लिए चरखे का उपयोग सल्तनत काल में ही हुआ था। इससे पहले लोग तकली से सूत काटते थे। तुर्कों के प्रभाव से नए तरह से जो है सिले हुए कपड़ों, जैसे खासकर पैजामा, कुर्ता, सलवार कमीज आदि का उपयोग भारत में शुरू हुआ।
इसी काल में नए तरह के पकवानों का भी चलन हुआ, जैसे हलवा, समोसा आदि। उस समय समोसा में कीमा भरकर तला जाता था। जैसे आप लोग समोसे के बारे में तो जानते ही होंगे, जो आज भी चलन में है। दूसरी ओर तुर्कों ने भी भारत से कई बातें सीखी। जैसे अलबरूनी भारत आया ही इसलिए था, उसने क्या सीखा आपको पता ही होगा, हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है। अरब के विद्वानों ने भारत के विद्वानों से गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद और योग सीखकर अपने देशों में उनका प्रसार किया। गिनती में शून्य का उपयोग करना भारत के विद्वानों से अरब के गणितज्ञों ने सीखा और उसे यूरोप में फैलाया। उन्होंने पंचतंत्र की कहानियों एवं आयुर्वेद के ग्रंथों को अरबी एवं फारसी भाषा में अनुवाद किया और इनसे उन्हें लाभ हुआ। सो स्टूडेंट, देखा आपने कि तुर्क और जो है भारत एक दूसरे के जो है विचार विमर्श और जो कला का किस प्रकार से आदान प्रदान किया। अब हम देखते हैं इसमें रिलीजियंस, धर्म के बारे में। क्या है धर्म? द सल्तनत era saw the rising influence of Islam. Islam had reached India centuries earlier with the Arab merchants who had come to trade along the western coast, but the Turk sultans encouraged their religions, building large mosques and donating money to Muslim saints and scholars. The Mongol attacked also brought many Muslim scholars and sons from Central Asia to India. सल्तनत काल में धर्म क्या था? सल्तनत काल में इस्लाम धर्म का प्रभाव जो था काफ़ी बढ़ा हुआ था। भारत में इस्लाम का आगमन कई सदियों पहले हो गया था। यह धर्म पश्चिमी तट पर अरब व्यापारियों के साथ आया था। सुल्तानों ने इस्लाम को काफ़ी बढ़ावा दिया। उन्होंने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवाई और इस्लामी संतों व धार्मिक विद्वानों को बहुत धन दान में दिया था। मंगोल आक्रमण के कारण मध्य एशिया से भी कई इस्लामी विद्वान व संत भारत आए थे। देन अब देखते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया व अमीर खुसरो के बारे में। शेख निजामुद्दीन औलिया was a famous Sufi sant who lived in Delhi. Many faqirs, maulvis, officials and ordinary people from the village and towns visited his खानगाह और आश्रम। They met to discuss religious issues. Sufisans usually imposed law of God and service of the poor. Amir Khusro was the favorite disciples of Sheikh Nizamuddin. He was a soldier by profession who was also a noted poet. He wrote many poems in Persian and Hindi, the earlier form of Hindi. He loved nature, birds and animals, music and science. You may have heard the melodious sound of the sitar and tabla. It is said that he invented these instruments. He said music attract not only humans but even animals. He loved Hindi and Hindustan, writing several songs, Persian, Hindustan. He called himself Tota-e-Hind, the parrot of Hind. People remember his riddle even today. Given the circumstances prevailing at the time, many people in India accept the Islamic faith. Islam is a monotheistic religion that believes in one God. It believes that all people are equal before God and there is no place for discriminations on the basis of caste or creed. The religions prohibited idol worship and everyone prays together
together in a simple and easy way. Before establishment of Sultanate period, Islamic too had developed many sects like says Sunni, Shia, Sunnis, Sufis, Islamic, etc. Muslim scholars and sons of all these different sects settled in India. During the Sultanate period, there was exchange of thought and ideas between different sects of Hindus and Muslims. Hindu sons were greatly influenced by the monotheistic principles of on one God. Several sons reached the conclusion that all religions is faith in on omnipotent God. They wanted to erase the difference between various religions. Kabir and Nanak were such saints. Both were against the caste system. Both wanted to put an end to the hypocrisy and ritual of different religions. They encouraged love for God and human values. In Chhattisgarh, tolerance to all religious and social harmony reasoned supreme. मीन्स उन दिनों क्या था, जो शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में क्या थे, रहने वाले एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। उनके खानकाह मीन्स आश्रम में फकीर, मौलवी, योगी, बड़े बड़े अधिकारी, गांव शहर के आम लोग सभी जाते थे और उनसे धर्म की बातों पर चर्चा करते थे। आमतौर पर सूफी संत दो बातों पर जोर देते थे। कौन सा? कि पहला ईश्वर से प्रेम व दुखी लोगों की सेवा करना। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन के प्रिय शिष्य थे। वे एक सैनिक होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध कवि भी थे। उन्होंने फारसी व हिंदी में अनेक कविताएं लिखी। उन्हें पशु पक्षी, ज्ञान विज्ञान और संगीत से बेहद लगाव था। आप जैसे तबले और सितार की मधुर आवाजें तो सुनी ही होगी। कहा जाता है कि इनका आविष्कार भी अमीर खुसरो ने ही किया था। वह कहते थे, संगीत के प्रति न केवल मनुष्यों बल्कि पशुओं का भी आकर्षण है। इन्हें हिंदवी और हिंदुस्तान से बहुत प्रेम था। उन्होंने हिंदुस्तान की प्रशंसा में कई गीत लिखे। वे अपने आप को तोताए हिंद कहते थे। उनकी पहेलियां आज भी लोगों की जुबान पर होती है। क्या आप उनके इन पहेलियों को के उत्तर बता सकते हैं? जैसे सावन भादो खूब चलत है, माघ पूस में थोरी, अमीर खुसरो यूं कहे तू बूझ पहेली मोरी। क्या आप जानते हैं बच्चों? ये तो सुना ही होगा। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। स्टूडेंट, इसी तरीके की कविताएं वो लिखा करते थे। इन सबके प्रभाव में भारत के कई लोगों ने परिस्थितिवश इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है जो एक ही ईश्वर को मानता है। इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है और इसमें जात पात, ऊंच नीच आदि भावनाओं के लिए भी जगह नहीं है। इस्लाम में माना गया है कि सभी लोग ईश्वर के सामने समान हैं। सभी लोग मिलकर सरल और सीधे तरीके से ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। और सल्तनत काल की स्थापना के पूर्व इस्लाम में कई धाराएं जैसे संप्रदाय बन गए थे, जैसे शिया और सुन्नी, सूफी, इस्माइली आदि। इन सभी संप्रदायों से संबंधित मुसलमान विद्वान व संत भारत में आकर बस गए थे। सल्तनत काल में इस्लाम व हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के बीच विचारों का आदान प्रदान और मेल मिलाप हुआ। इस्लाम के एकेश्वरवाद ने हिंदू संतों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उसी तरह योग और गीता का गहरा प्रभाव इस्लामी संतों पर भी पड़ा। कई संत इस नतीजे पर पहुंचे कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की भक्ति की बात करते हैं। वे विभिन्न धर्मों के बीच के अंतर को मिटाना चाहते थे। ऐसे ही संत थे कबीर व नानक। कबीर व नानक को तो आप लोग जानते ही होंगे। कबीर व नानक जैसे संत ऊंच नीच, जात पात का विरोध करते थे। साथ ही सभी धर्मों के आडंबर एवं पाखंड को समाप्त करना चाहते थे। वे ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम और मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहते थे। छत्तीसगढ़ में सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक सद्भाव की भावना सर्वत्र विद्यमान थी। तो बच्चों, आप लोग भी इस तरह के जो धर्म के बारे में और जो नानक है, कबीर है ना, और ऐसे जो कवि हैं, ऐसे लोगों की जो है बातें आज भी आप लोगों को याद होगी। आपने इनकी जो कविताएं हैं दादी नानी या दादा दादियों से सुना ही होगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो है दूसरे देशों से क्या क्या सीखा और हमसे जो भारत से और जो बाहर के लोगों ने क्या क्या सीखा। इस तरीके के आदान प्रदान हमारे बीच में
हुआ करता था। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। ओके, टेक केयर।